Thank you. So, hi people. Hi, my name is Rahul, your host in Thus Forever. And today, basically, good morning, good evening, and good noon at whatever time you're watching this video. I have some special people whom I would like you to meet, our CSET July 2022 exam toppers. So, before I welcome them, I'd like that just hold your excitement because they're going to reveal कि उन्होंने क्या किया था, कैसे पढ़ा था, and how they were able to score this score. So we'll discuss all other things in the details with them. But before that, let's welcome each of them. So the first topper, exam topper, holding the first position in CSET July 2022 examination with a score of 168 marks. Please welcome Mr. Vedant Parekh. Say hi to your audience. Hello. Alright. So the other person and scoring the second position in CSET July 2022 examination is Nancy Agarwal. Please, Nancy Agarwal, show your face to the audience. Many congratulations. Say a hi to the audience. And yeah, scoring the third position in our CSET July examination 2022 is Karanj Shah. Is Karanj Shah? Please, Karanj, say a hi to our audience. Hi. Many congratulations. Say a hi. Okay, so पहले तो I must say that in fact I should give a huge round of applause for all our kids who have scored such an amazing score. तो पहले ही इनके लिए और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरव्यू. तो दिस इज नॉट एक्चुअली इंटरव्यू जहाँ पे मैं उन्हें पूछूंगा कि भाई तुम्हारे सीक्रेट्स कैसे बताओ, तुम्हारे लाइफ सीक्रेट्स के बारे में बताओ, नथिंग सच लाइक दैट. हम बहुत ही जनरल बातें करेंगे आपसे जहाँ पे हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसी क्या चीजें की थी या फिर कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिन्होंने आपको एग्जामिनेशन में इतना अच्छा स्कोर करने के लिए मदद किया. बट बिफोर वी स्टार्ट, इट्स एन ह्यूज अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ देम दैट अभी इनका फर्स्ट ईयर का एडमिशन भी नहीं हुआ है और इन लोगों ने अपना सीएस का एक स्टेज क्लियर कर लिया. मतलब पीपल स्टिल दे वुड हैव बीन वंडरिंग कि हमें क्या करना है, हम कौन सी फील्ड में जाएं, हम कौन से कॉलेज में एडमिशन ले. एट दैट सॉर्ट ऑफ टाइम these three kids have already cleared first stage of an examination of a course, of a reputed professional course known as company secretary. So I guess guys, it's a very big achievement and congratulations for that. And I guess ये अभी शायद आपको एक undoubtedly it's a happy moment, you must be feeling happy. But obvious सी बात है, आपको भी आज ये achievement फील हो रहा होगा कि आपके दोस्त अभी शायद कहीं ना कहीं होंगे, वो भटक रहे होंगे कॉलेज के एडमिशन के लिए, बीकॉम के एडमिशन के लिए, बीबीए के एडमिशन के लिए. वहाँ पे आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल प्रोग्राम इंडिया में टॉप 10 लीडिंग कोर्सेज में से एक कोर्स का स्टेज क्लियर कर चुके हो. आपको सिर्फ 3 स्टेप क्लियर करने, उसमें से एक बड़ा स्टेप हमारा क्लियर हो गया. एक टाइनी स्टेप जो नीडेड, हम कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए पहले एक कदम लेना पड़ता है, तो वो कदम आपका ऑलरेडी हो चुका है. अब तो बस हमें पार्ट एंड पार्सल एक प्रोसेस का पार्ट बनना है. एंड सूनर और लेटर यू गोना बी अ कंपनी सेक्रेटरी एंड इन फैक्ट इंशाल्लाह यू कैन बी अ पार्ट ऑफ यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया. राइट नाउ you must be 18, right? Yes. At the age of 18, they already cleared their first stage, and within a span of 2 years, probably at the age of 19 or 20, they'll be youngest company secretaries in Vadodara itself, or probably in India even. तो बहुत ही करीब हो अपनी मंजिल के. बट फिर भी चलो, आज सिर्फ एक पहले स्टेज की खुशी की बात है तो हम सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे. तो Vedant, we'll start with you. Tell me how you're feeling today. I am really happy that I have completed the CSET. Like I'm really happy that I have completed CSET. While most of my friends are just like deciding on what to do in future and stuff. Like the result came and I was anxious and tensed on what will my result be. Like the examination was easy, but for completing it we need to have our concepts cleared thoroughly. Absolutely. Tell me, are your parents happy today? आपके mom dad खुश? Yes, they are really happy. Like I have received calls from so many relatives congratulating me, and like everyone in my family is so happy. They are organizing a party already. Well, I guess that's the bad part, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स जब भी हमें फोन करते हैं, probably वो सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए फोन करते हैं, पूछने के लिए फोन करते हैं, अच्छा आज तो रिजल्ट था. बट फॉर्चुनेटली वेदांत के पास एक अच्छा रीजन है उनसे बात करने के लिए. वेदांत खुल के बोल सकते हैं, हाँ, I have scored 168 out of 200 marks. तो yes, you call me and I'll answer you. Yeah. And you tell me, Karanj, आपके घर पे माहौल कैसा है? आप खुश हैं? मॉम डैड खुश हैं? बहुत. I am very excited. Like I thought I would fail, but मुझे लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगी. ये आजकल के बच्चों का ये एक और नया टैलेंट है कि उन्हें ज्यादातर ऐसे चलिए. तो मॉम डैड से आज कुछ ऐसी ब्लेसिंग मिली जो कि आशीर्वाद कभी मिलते नहीं नॉर्मली? Yes, I'm very, मतलब बहुत खुश है सब घर पे. पापा ने तो ऐसा भी बोला कि लाइक तू पक्का थर्ड आई है, आगे से या पीछे. पार्टी शादी का माहौल है आजकल. हाँ. Many congratulations. Now let's talk to Nancy Agarwal.
जिन्होंने टॉप सेकंड पोजीशन स्कोर किया है विद अ स्कोर ऑफ 159 मार्क्स एंड करण हैड स्कोर्ड 153 मार्क्स. सो यू टेल मी नैंसी, आपके घर पे सब माहौल कैसा है? मॉम डैड आर हैप्पी, यू आर हैप्पी? मम्मी पापा खुश है और अभी मैं 17 की हूँ और मेरा सीसेट क्लियर हो गया अच्छे से. और आपने मुझे पूछा भी था एक दिन के कितने आएंगे, मैंने कहा था मैं पास हो जाऊँ 100 110 120 आ जाएंगे, पर अभी अच्छे नहीं. चलो पॉसिबल. तो शी इज जस्ट सेइंग दैट शी गॉट माय ब्लेसिंग एंड नो डाउट ब्लेसिंग सभी के साथ थी. तो यू गाइस टेल मी, हम पहले एक एक करके बात करते हैं. तो वेदांत आप हमें प्लीज बताइए कि आपके लिए डीडी इंस्टीट्यूट में आपने ये जो 2 महीने स्पेंड किए, और आई वुड लाइक टू इंस्टेट ऑन दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन बच्चों के पास प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 2.25 महीने थे. CSET आफ्टर कंप्लीटिंग 12th इनके अटेम्प्ट में सिर्फ 2.25 महीने का गैप था और सिर्फ 2.25 महीने में दे हैव अचीव्ड दिस रिजल्ट पास. तो वेदांत आप प्लीज बताइए दैट डीडी इंस्टीट्यूट में एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हाउ डिड इट हेल्प यू, या व्हाट वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एट डीडी? Like I was just going to personal and private tutoring, so just coming to such an institute, such a big institute, it was a really different experience for me. They have different faculties for different subjects and all. It was like really a new experience for me. The teaching method was different and it was a really fun and creative way to teach us, and like the sirs really came down to the level of students and understood what they were facing problem. This school It really helped me because like it was fun. मतलब we studied with fun. हमने बहुत मस्ती की, उसके साथ पढ़ा, बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए, डिस्कशंस किए. फिर सारी फैकल्टीज बहुत अच्छी रही, मतलब बहुत अच्छे थे हमारे साथ. सब बहुत अच्छे थे. सर पढ़ाते थे बहुत अच्छे से, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और उनका टीचिंग स्टाइल भी बहुत डिफरेंट था. हर एक दो दिन छोड़ के यहाँ असाइनमेंट्स होती थी. अगर वो सीरियसली किया तो फिर इट विल प्रोबेबली हेल्प यू. तो मेंटी क्विज थी, फिर हमें असाइनमेंट सॉल्व कराए थे डीडी कैप में कंटिन्यूस. हमें हर वीकली नए टेस्ट देते थे. Okay. हर बार अलग अलग क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके देते थे, तो हमें बाकी के नए तरीके से आए तो हमें मदद मिल सके. और एमसीक्यू बुक. हाँ, और एमसीक्यू बुक सॉल्व करने के लिए थी. Alright, great. तो you guys tell me, आप एक एक करके प्लीज अपनी थोड़ी ना सीक्रेट स्ट्रेटजीज के बारे में बताइए, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में बताइए जिसके वजह से आपकी जो डिश है, जो आपका स्कोर है वो इतना अच्छा हो गया. तो एक एक करके बात करते हैं. आप लोग प्लीज अपने अपने एग्जामिनेशन टाइम पे, जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहा था, प्रोबेबली पिछले एग्जामिनेशन से 1 हफ्ता पहले या 15 दिन पहले आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जिसके वजह से आप बोल सकते हो कि it helped you to score this marks or it helped you to perform well in the examination? આથી જે લાઈફમાં આપણે જ્યારે પણ આપણને જે ભણાવતા હતા દરરોજ પહેલેથી રિવિઝન્સ કરતા હતા, પણ પછી લાસ્ટ છેલ્લા 15 ડેઝમાં દરેક સબ્જેક્ટનું જેટલું પણ મટીરિયલ હોય, અસાઇનમેન્ટ્સ હોય, બધા આપણે જ્યારે કરાવે એ જ દિવસે ફરીથી રિવિઝન કરતો હતો. અને પછી કન્ટિન્યુઅસ આમ મોબાઈલ અને પહેલાંનો યુઝેજ મારો વધારે હતો તો એ મેં ઓછો કરવા લાગ્યો અને થોડુંક ભણવા ઉપર ફોકસ વધારે થયું. પણ તો પણ એવી રીતે લાઈફસ્ટાઈલને મેન્ટેન કરી મેં કે ફ્રેન્ડ્સ અને બધા સર્કલ સાથે પણ રહેવાય અને ભણવાનું પણ એક સાથે કવર થઈ શકે મારા. चलो, a balanced life. Till then it was a balanced life. What about you? मैंने पहले से रोज 2 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ा है. लास्ट भी मैंने उतना ही पढ़ा है, कोई ज्यादा चेंज नहीं किया. जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की. आप रोज 1 घंटा पढ़ें, बट रोज पढ़ें, तब एग्जामिनेशन पे कभी 6-7 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा. एंड दैट्स द सेम व्हाट करण हैज यूज्ड. वो रोज बंदी 2 घंटे घर पे पढ़ती थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टू द एंड डे. उसने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा. नो एक्स्ट्रा आवर्स शी हैज गिवन टू हर स्टडी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, एंड दैट्स ओनली बिकॉज शी वाज कंसिस्टेंट टू स्टडी 2 आवर्स एवरी डे, एवरी सिंगल डे. एंड व्हाट अबाउट यू नैंसी? सर मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा. एग्जाम के 15-20 दिन पहले, मतलब अप्रॉक्स 1 महीने पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी. फिर स्टार्टिंग में तो मैं दिन में ही पढ़ती थी, फिर ऐसे 5-10 दिन बाकी थे तो 1-2 घंटे रात में भी जग लेती थी. तो शी जस्ट मेंट टू से दैट ऑल द फैकल्टीज वाज सो अमेजिंग कि उन्होंने सिर्फ जो पढ़ाया क्लास में उसने सिर्फ उतना ही पढ़ा, उसके अलावा वो घर पे कुछ नहीं पढ़ती थी और फिर भी उसने इतना अच्छा स्कोर कर लिया. आई गेस दिस वाज द पॉइंट. इट्स एन एक्सेप्शन. आई वोंट से दैट प्लीज फॉलो हर दैट शी डिडंट स्टडी मच एट एग्जामिनेशन टाइम. तो आपको भी यही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. बट ठीक है, नेवरदलेस शी वाज स्मार्ट एनफ टू स्कोर विद लेस सच ऑफ स्टडी एंड शी डिड इट वेल. ऑल द फैकल्टीज वर वेरी मच अमेजिंग. हमको कभी भी कुछ भी डाउट होता था, हम सर को जाके पूछते थे,
सर हमको तब बताते थे और हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या कब जो डिफिकल्टी हो रही है वो सब बताते थे। हम एनी डे पे कभी भी हम एनी टाइम उनको मैसेज करते थे, हमको रिप्लाई देते थे। वो हमारे डाउट्स बहुत अच्छे से सॉल्व करे, हमको पढ़ाया बहुत अच्छे से और मेंटल सपोर्ट भी अच्छे से किया। छोटी बच्ची हो क्या? मतलब ऐसे आपका ध्यान रखा था ना उन्होंने? हाँ, छोटे बच्चे हाँ, छोटे बच्चे की। डीडी इंस्टीट्यूट इज लाइक अ फैमिली। बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और पढ़ाते बहुत अच्छे से है। इफ यू आर परसुइंग कंपनी सेक्रेटरी देन दिस इंस्टीट्यूट इज गुड फॉर यू। तो ठीक है, वेल दिस वर आवर किड्स, दिस पीपल हैव स्कोर्ड रियली वेल। अभी देखने में ये सब बहुत बच्चे लगते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में बच्चे हैं। दिस किड्स आर 17-18 years old and whatever they have achieved today, I can say that it is a huge achievement. They won't realize it right now, but when at the age of 19, 20, 21 they'll become a company secretary, they'll realize that अभी तो शायद लोग ने अपना ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं किया है और उससे पहले ये लोग अपना कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स खत्म कर लेंगे। और शायद यही आपका सपना भी है कि आप अपने ग्रेजुएशन के साथ इस कोर्स को परस्यू करो, अपने ग्रेजुएशन से पहले से खत्म करना चाहते हो, तो अनडाउटेडली उस सपने की तरफ आपने अपना पहला कदम बहुत ही सफलता से बढ़ा दिया है और बाकी के 2 कदम भी जल्दी ही निकल जाएंगे। सो मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू गाइस।